हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट के आंसर्स। आई होप आप सबका टेस्ट बहुत ही अच्छा गया होगा, है ना। क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे जिसके आप आंसर्स बहुत इजीली दे पाए, है ना। तो चलिए इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सबको क्वेश्चन का फॉर्मेट पता ही है, 10 क्वेश्चंस वेर MCQs एंड बाकी के 10 क्वेश्चंस वेर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस which were of 20 marks और MCQs questions 10 marks के थे। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं MCQs। The very first question was the word democracy comes from the Greek word, ठीक है, and what was that? And your option was A democria, B democrita, C demos or D crita. So your correct answer will be A democratia, ठीक है। Second question, which of these features is or are necessary to provide the basic right of the citizen? And your options are citizen should be free to think, B should be free to form any association, C should be free to raise any protest, D all of the above. yes हर सिटीजन का बेसिक राइट होता है कि every citizen has a right to think, to form any association, ठीक है, to raise any protest। तो ये सारे all of the above होंगे। तो इसका आंसर होगा D all of the above, D all of the above, ठीक है। Third question is what is constitutional law? Constitutional law क्या है? And your options are A provision given in the constitution, B law to make constitution, C law to set up constituent assembly, D none. Your correct answer will be A provision given in the constitution. Okay. Fourth question, the constituent assembly adopted the constitution of India on when? ठीक है। Your options are 26th January 1950, B 26th November 1950, C 26th January 1949 और D 15th of August 1947। ये क्वेश्चन काफी रेगुलरली मैंने ऑलरेडी पूछ चुका है। इसके आंसर्स के लिए आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं होगी। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, how many members had the constituent assembly that wrote the Indian Constitution? कितने मेंबर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे हैं, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर A 200, B 199, C 198 और D 190। योर करेक्ट आंसर विल बी B 199, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? एंड योर ऑप्शंस आर A नागपुर, B Karachi, C Calcutta, D Delhi. And your correct answer will be option number B Karachi. Question number 7, our country is divided into how many constituencies? Your options are A 500, B 543, C 550, D 552. And your correct answer will be option number B 543. Question number 7 का 543। Question number 8, the number of Lok Sabha constituencies in Delhi are A, option number A 2, B 4, C 6 or D 7. And your correct answer will be option number D 7. Option number D 7. Question number 9, who exercise all government powers? कौन सारे गवर्नमेंट के पावर्स को यूज करता है? A प्रेसिडेंट, B प्राइम मिनिस्टर, C चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या D चीफ इलेक्शन कमीशन। एंड योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन व्हेन? इन विच ईयर? योर ऑप्शंस आर A 1979, B 1981, C 1985 और D 1999। And your correct answer will be A 1979। Number A 1979।
अब जल्दी से हम क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिफाइन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो आपके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बेटर आंसर ये हो सकता है। एट डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on the behalf of the people. All those functions are collectively known as executive. ठीक है, समझ में आई बात? Now, question number 2. What is the tenure of prime minister? प्राइम मिनिस्टर का कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं होता जब तक उनके मिनिस्टर्स लोकसभा में अवेलेबल होंगे और उनकी पावर होगी, तब तक प्राइम मिनिस्टर के पद पे वो पर्सन होंगे। ठीक है, अगर कोई मेजोरिटी से हार जाती है या 5 साल के बीच में कभी ऐसा होता है कि सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर भी हट जाते हैं। और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है 5 इयर्स का। ठीक है, वही बताया गया है। प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक और फिक्स्ड tenure. Normally, a prime minister is elected for 5 years but remains in the power till he enjoy majority supports. Here, next question. Question number 3, which is the highest court of India? बताइए. Yes, Supreme Court is the highest court of India. Question number 4. What do you mean by voters? ठीक है, voters से आप क्या समझते हैं? People who have right to vote or participate in the election of representative are known as voters. ठीक है, उन्हें जिनके पास राइट होता है वोट डालने का, उन्हें वोटर्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, what do you mean by polling booth? पोलिंग बूथ मतलब क्या होता है? A, answer will be a polling booth is a place where voters go inside to cast vote. पोलिंग बूथ आपने नहीं देखा। जब आप 18 ईयर्स से अबव हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया रहता है, उसे कवर कर दिया जाता है। उस एरिया में एक स्पेसिफिक पर्सन जाके वो अपने वोट कास्ट करते हैं और देन ही केम बैक। ठीक है, तो उस एरिया को पोलिंग बूथ कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर इलेक्शंस? इलेक्शंस क्या होते हैं? इट इज एन मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज अ रिप्रेजेंटेटिव एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो भी इलेक्शन होता है, लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना ही इलेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रीएम्बल? द टर्म प्रीएम्बल से आप क्या समझते हैं? 2 मार्क्स के आंसर के लिए किस तरह आंसर लिखेंगे ये देखते हैं। The Constitution begins with the short statement of its basic value. ठीक है, प्रीएम्बल में बेसिक वैल्यूज मेंशन किए गए हैं और इन्हें ही प्रीएम्बल कहेंगे। किसके बेसिक वैल्यूज? कॉन्स्टिट्यूशन की या लोगों के हित के बेसिक वैल्यूज को मेंशन किया गया है, जिसे हम प्रीएम्बल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेक्युलर? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? It means citizens have a complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. हर एक स्पेसिफिक पर्सन या हर एक सिटीजन को अपने धर्म को, अपने रिलीजन को चुनने की पूरी आजादी है और हमारे देश का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा, उसे कहते हैं सेक्युलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, why does a democratic government is a better form of government? आंसर, बिकॉज स्पेसिफिकली लिखते हैं, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत ही अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? तो इसके लिए बेटर आंसर क्या हो सकता है देखते हैं। द 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज। A, rulers elected by the people take all the major decisions. B, the choice and the opportunities is available to all the people on the equal basis. हर जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया एक पर्सन को या रिप्रेजेंटेटिव्स को, वही सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं जो लोगों के हित में हो। ठीक है, सेकेंड, the choice and the opportunities is available to all the people who on the equal basis. हर पर्सन के पास चॉइस रहती है और एक
अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग लोगों को चुन सके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आई होप ये आंसर्स आपको काफी हेल्पफुल भी लगे होंगे और उससे पहले ही आपने सारे आंसर्स को दे भी दिया होगा। आई होप अगर इन क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज लेट मी नो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, थैंक यू।